इंग्लिश में करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे। आप लोग थोड़ा शांति रखिए, इसका मेरे पास पर्याप्त समय है। We'll do question answers afterwards. Whenever you say. Okay? तो इंग्लिश में, हिंदी में, जरा आप थोड़ा अपने बाकी साथियों के लिए भी। Friends, the autocratic and dictatorial face of the BJP, the ruling dispensation, the government was in full show in each House of Parliament over the past few days. It was on show in the most brazen, undemocratic and unparliamentary expunction of several of Shri Rahul Gandhi's remarks, several of the LOP Shri Mallikarjun Kharge's remarks, some of the remarks of Mr. Jairam Ramesh, followed, of course, by the suspension on Friday of Ms. Rajni Patil. The BJP government, we submit, is moving towards establishing an authoritarian dominance in Parliament by terrifying, terrorizing, tormenting, and tyrannizing the opposition. Instead of wanting to run Parliament through consensus, collaboration, and concordance, they are wanting chaos, clash, and conflict. You have all heard in the public domain the speeches in Parliament. They are available in the public domain. You would have seen the text also. My short point is that not a word therein can justify the use of the power of expunction. You can ask and see for yourself, is there a single word of unparliamentary language, any expletive, abuse, debasement of any institution, any objectionable word or phrase, defamatory, indecent, unparliamentary or undignified? Not a word. Shri Rahul Gandhi and Shri Kharge spoke extremely politely but firmly based on factual narratives. In fact, it is amusing, supremely ironical, that some of the expunged portions are questions which they asked. I don't know how you can expunge questions. The Honorable Speaker and the Honorable Chairperson of the two houses respectively are constitutional office holders. They are custodians and defenders of freedom of speech inside the House. And this free speech is a fundamental pillar of Indian democracy, especially within the temple of democracy, namely Parliament. Without a robust shield provided by the presiding officers of each house, the spirit of healthy parliamentary discussion and debate will perish. Freedom of speech is the foundation of our constitution, and it is much more so within the legislature, where it is a protected species, specially protected. There are constitutional articles about it. Each one of us has to defend the right of free speech within Parliament. And if the two houses of Parliament cease to have space for free speech, then sadly, friends, we cannot call ourselves a democracy. Unless free, frank, and fearless discussion is allowed within the two houses, democracy and the whole principle of free speech is irreversibly imperiled. Parliament can hardly remain what Nehru called the grand inquest of the nation if free speech, which leads to fearless discussion, is throttled. Expunction is not justified by any of the relevant rules applicable. You can take Rule 380 for the Lok Sabha, you can take a similar rule in the Rajya Sabha. Far from applying on the merits, it doesn't even apply at all. The language doesn't apply. Because none of the words, as I said, are objectionable, unparliamentary, indecent, defamatory, abusive, etc., which is what the rule seeks to control. This government, we believe, this ruling party is the most curb, control, and command-freak sarkar which this nation has ever seen.
Friends, I now turn to another aspect. On 10th of February, that is a day before yesterday, the Rajya Sabha witnessed yet another example, yet another low in a series of unprecedented highs of undemocratic behavior and sad precedents created at the behest of this autocratic government. And because of that, the entire opposition, cutting across the political spectrum, had no option but to walk out on Friday. Ms. Rajni Patil, Member of Parliament, in a 15-minute sudden surgical strike, was suspended for alleged video recording of House proceedings during the Honorable Prime Minister's speech. No show cause, no prior notice, no prior intimation was given to her. Secondly, now mark these points, friends, Rule 257 was invoked. On the face of it, it is textually, word-wise, totally inapplicable. You can just pick it up and read it. It says that you may suspend, and I repeat, for persistent and willful obstruction of the House. Mark the words, persistent and willful obstruction. The idea is that if the running of the House by the chair is made impossible by your conduct, by your obstruction, then I may consider suspending you. Now, Ms. Patil has not dealt with the facts alleged against her for the simple reason that she has had no opportunity to do so, no show cause, no intimation. But assuming without accepting that any video was made, it cannot fall within the domain of persistent and willful obstruction of the House necessitating suspension. Therefore, the rule is completely inapplicable. Thirdly, at the worst, it is a one-time act, a first-time act. And persistent and willful not being there, it can at best lead to a warning, cannot lead to suspension. Fourthly, the cart is put before the horse in the eagerness of this government to create sensationalism, to humiliate a member of parliament. The normal sequence is inverted and put on its head. The normal sequence of what, friends? Of natural justice. You are saying that we will inquire into it through the Privileges Committee. Before inquiry, before notice, before commencement of inquiry, before hearing Ms. Patil, before any proceeding, you first take the decision to suspend. If at all, it should have happened at the end of the inquiry. Therefore, all elementary notions of fair play were thrown to the winds. Fifthly, the Honorable Prime Minister spoke for over 75 or 90 minutes. It cannot be said in any stretch of imagination that he was obstructed in terms of delivery of the speech. There might have been interruptions and comments, but there was no obstruction rendering the functioning of the House impossible. Sixthly, there have been many incidents in the past like this by members of the present ruling party where either no action was taken or at the most warning sufficed. The present immediate suspension before starting an inquiry is therefore disproportionate, excessive, and actuated purely by malice at the behest of this government. Seventhly, the Honorable Chair ought not to have acted on this one-sided and unilateral proposal of the government without even initiating a preliminary inquiry and waiting for its report. And eighthly, as was pointed out in the House, you have to simply look at the proceedings of 9th of February. There was a complete biased, selective and one-sided approach by Sansad TV. Sansad TV was acting under the misconception that it's the spokesperson of the government or a part of a Sarkari department. The opposition was not given an infinitesimal fraction of the coverage given to the Treasury benches during the speeches on 9th. It was virtually blacked out during the long speech of the Honorable Prime Minister. And this is yet another low of partisanship which has been achieved on the directions of this dictatorial government. Friends, in the end, I would say, with great respect but with total firmness, that such brazen, unconstitutional approaches, such blatant partisanship, such uncaring decimation of rules and convention,
such destruction of democratic values, such debasement of legislative proceedings deserves our strongest collective condemnation. दोस्तों, संक्षेप में हिंदी में मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भाजपा द्वारा संस्थानों की हत्या का देश झेल रहा है दंश। भाजपा द्वारा संस्थानों की हत्या का देश झेल रहा है दंश। अब वो संसद को मार रही ऑपोजिशन की भाषणों के अंश काट रहे हैं। ये एक नया तरीका निकाला गया है गैरतांत्रिक, अगणतांत्रिक व्यवहार का। भाजपा को लगता है कि विपक्ष के बिना वो चला लेगी देश। कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा वो ये कर सके। इस तानाशाही, इस निरंकुशता का चेहरा पिछले कुछ दिनों में संसद में बड़े नंगे रूप से दिखा है इस सत्तारूढ़ पार्टी और इस सरकार का, जिसने बार बार, चाहे वो श्री राहुल गांधी के स्पीच के बड़े बड़े हिस्सों में शब्द निकालने की प्रक्रिया हो, शब्दों को निष्कासित करने की प्रक्रिया हो, एक्सपंक्शन की, या वही प्रक्रिया हो माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वक्तव्य से, या कुछ हद तक जयराम रमेश जी के वक्तव्य से भी, और उसके बाद मिस रजनी पाटिल के निलंबित होने की प्रक्रिया। मैं आपको इन सबको बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं, लेकिन बात सिंपल सरल ये है कि अब संसद में भी ये सरकार और ये सत्तारूढ़ पार्टी ये डराने की, धमकाने की, अत्याचार गणतांत्रिक नियमों के साथ, संविधान के साथ, उसूलों के साथ करने की प्रक्रिया शुरू करने में जुट गई है। वो नहीं चाहते कि संसद सहमति से चले, समन्वय से चले। वो चाहते हैं टकराव हो और टकराव से चले। टकराव के नए नए पहलू निकाले जा रहे हैं। आप सब ने जो जनता के समक्ष अब 2-3 दिनों से हैं, वो सभी वक्तव्य पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, जो माननीय राहुल गांधी जी ने दिए, माननीय खड़गे जी ने दिए, और आपके पास उनके टेक्स्ट भी हैं, सबको मालूम है। आप ये बताएं कि गैर संसदीय इसमें एक शब्द अगर मुझे बता दे कोई, दुर्वचन एक वाक्य बता दें, मानमर्दन किसी संस्था का हुआ है वो बता दें मुझे, आपत्तिजनक या गाली गलौच वाला कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है वो दिखा दें हमें, अभद्र, मानहानि वाले शब्द, क्या चीज है जिससे आपने ये शब्दों को निष्कासन करने, एक्सपंक्शन वाली प्रक्रिया की। और इससे ज्यादा शिष्टाचार के साथ, शिष्टापूर्वक राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने जो बोला है वो सभी तथ्यों के आधार पर बोला है। बल्कि इतनी मजाकिया एक प्रवृत्ति दिखाई है सरकार ने कि प्रश्नों को भी निष्कासित करने का प्रयत्न किया गया है, प्रश्नों को भी निष्कासित किया गया है। जो दोनों सदनों के अध्यक्ष हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो हमारे संविधान के इस अंग के रक्षक हैं, स्तंभ हैं, संरक्षक हैं, और सबसे पहले संरक्षक हैं स्वतंत्र, खुले रूप से अपनी बात रखने के सिद्धांत का पालन करने के लिए। ये एक मौलिक स्तंभ है हमारे गणतंत्र का कि हम स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष, निडर रूप से, स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से अपने विचार संसद में रख सकें। और उसके संरक्षक ये लोग हैं, ये अध्यक्ष हैं, क्योंकि संसद हमारे गणतंत्र का मंदिर है। उनके कवच के बिना, उनके संरक्षक के बिना, उनकी सुरक्षा के बिना ये स्वस्थ संसदीय विचार विमर्श कैसे होगा। डिबेट खत्म हो जाएगा। स्वतंत्र बोलना जो हमारे संविधान की नींव है वो खत्म हो जाएगा संसद के अंदर। हम सबको खड़े होके इसको बचाना है। और
अगर आप स्वतंत्र, खुला, निडर, पारदर्शी विचार विमर्श नहीं अलाउ करेंगे संसद के अंदर, तो कहां आपकी गणतंत्र प्रणाली बचेगी? वो अपरिवर्तनीय तरीके से खतरे में पड़ जाएगी। आखिर संसद को देश का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा गणतांत्रिक जांच का आयोग माना गया है। इससे बड़ा आयोग कहीं नहीं है। वो अपना काम कैसे करेगा अगर आप उसका गला घोट देंगे इस प्रकार के नियमों द्वारा, जिसमें आपने शब्दों को निष्कासन किया, इतने सारे वाक्यों को, जिनका कोई एक्सपंक्शन के नियम से सरोकार तक नहीं है। अगर आप उठा के पढ़ें 380 लोकसभा में और यही रूल है राज्यसभा में, तो जितने मैंने शब्द कहे आपको, अभद्र, मानहानि, गाली गलौच, असंसदीय, एक शब्द बता दें, उसके अलावा आप 380 को लागू नहीं कर सकते। तो फिर कैसे किया आपने निष्कासन इन शब्दों का? और इसका सिर्फ एक कारण है, सरकार का प्रेशर, दबाव, दुष्प्रभाव, ये नियंत्रण और कमांड सन की कमांड फ्रीक सरकार है, जो हर चीज को नियंत्रण फ्रीक, नियंत्रण सन की सरकार है। और अब ये विधायिका में भी यही कर रहे हैं। 10 तारीख को इसका एक और नया उदाहरण मिला आपको, एक और नया अभूतपूर्व उदाहरण। ऐसी ऊंचाइयां इस अभूतपूर्व उदाहरण में हैं, लेकिन दुखद मिसाल बनेगा ये भविष्य के लिए। किसका? तानाशाही का और निरंकुशता का। और इसके कारण पूरी राजनीतिक, सामूहिक रूप से जो विपक्ष का राजनीतिक स्पेक्ट्रम है, वो सदन से बाहर चले गए थे 10 तारीख को। मिस रजनी पाटिल एक 15 मिनट की सर्जिकल स्ट्राइक, शल्य चिकित्सा जिसको सरकार बहुत शौक से बात करती है, उसके अंतर्गत निलंबित हुई। आरोप है एक वीडियो रिकॉर्डिंग के विषय में। पहली बात, कोई उनको कारण बताओ नोटिस, कोई प्रक्रिया, कोई अवसर नहीं दिया गया। दूसरी बात, अगर आप रूल 257, 257 पढ़ें, जिसके अंतर्गत ये किया गया, तो लागू ही नहीं हो सकता। उसमें बड़ा साफ लिखा है कि ये इसके लिए हो सकते हैं निलंबित अगर, और मैं कोट कर रहा हूं, परसिस्टेंट एंड विलफुल, बार बार और जानबूझकर आप अगर हाउस को चलने न दें या ऐसा वातावरण पैदा करें कि माननीय अध्यक्ष हाउस को चला न सकें। अभी तक मिस पाटिल ने कोई जवाब नहीं दिया कि उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी ने वीडियो बनाया, जो कि अभी किसी रूप से माना नहीं गया है, तो भी वो परसिस्टेंट एंड विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन कहां हो सकता है? जानबूझकर, बार बार, परसिस्टेंट। इसीलिए तीसरा पहलू कि ये अगर सब कुछ भी मान लिया जाए तो एक पहली बार की गलती है, जिसमें कि हमेशा से चेतावनी ज्यादा से ज्यादा, अगर ये हुआ है, मानी जाती है, न कि निलंबन। चौथा, इसमें जो सबसे बड़ा मूल सिद्धांत होता है कानून का, जिसको प्राकृतिक न्याय कहते हैं, नेचुरल जस्टिस, उसका तो पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। इंक्वायरी आपने कही कि हम करेंगे, उससे पहले निलंबन कर दिया। इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, उससे पहले निलंबन कर दिया। नोटिस देने से पहले निलंबन कर दिया। इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले निलंबन कर दिया। तो जो भी आम संतुलन या संतुलित प्रक्रिया के नियम हैं, उनको आपने बाहर फेंक दिया खिड़की के। पांचवा, माननीय प्रधानमंत्री लगभग 90 मिनट या 75 मिनट से ज्यादा बोले। उनके स्पीच में कोई ऐसा व्यवधान पैदा नहीं हुआ, नहीं तो बोल ही नहीं पाते 90 मिनट तक, जिससे कि रूल नियम 257, 257 लागू होता कि ऑब्स्ट्रक्शन हाउस का ऐसा हो कि हाउस चल ना पाए। चल नहीं पाता तो इतनी लंबी वक्तव्य कहां से आता, भाषण कहां से आता? छठा, ऐसे कई और उदाहरण हैं पुराने बीते हुए समय के। आज की सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबरान द्वारा ज्यादा से ज्यादा उसमें चेतावनी हुई है या कोई एक्शन हुआ ही नहीं है। इस प्रकार से किसी को ह्यूमिलिएट करना, बार बार उनका नाम लेके और खड़ा करना कटघरे में संसद में और फिर निलंबित कर देना बिना किसी प्रक्रिया के, ये असंगत है, अति है और सिर्फ पक्षपात से, सरकार के दबाव से किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय को इस सरकार के
अनुरोध को नहीं मानना चाहिए था, जो कि एक तरफा है, पक्षपाती है और सभी गणतांत्रिक नियमों के विरुद्ध है। हम ये भी कहेंगे 8वें पहलू में कि अगर कोई भी आंख बंद करके पट्टी बांध कर भी देखने का प्रयत्न कर ले संसद टीवी उस दिन का, तो आप देखेंगे पक्षपात की कितनी बड़ी ऊंचाइयां उस दिन आई हैं। ट्रेजरी बेंचेस और विपक्ष के बीच में कोई अनुपात ही नहीं है कवरेज का। एक फ्रैक्शन भी, एक छोटे से छोटा हिस्सा भी विपक्ष का नहीं दिखाया गया है। अगर तुलनात्मक रूप से आप देखें माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के समय की संसद टीवी की कवरेज, अब संसद टीवी इस बरगलाने वाली प्रक्रिया में है कि वो एक सरकारी डिपार्टमेंट है या प्रवक्ता है सरकार का, न कि संसद का एक चैनल। तो आप समझ सकते हैं कि गणतांत्रिक लोकतांत्रिक संतुलन कहाँ चला गया है। पक्षपात सबसे बड़ा एक आज सिद्धांत बन गया है। हम मानते हैं कि ऐसा जो हुआ है, पक्षपात, असंवैधानिक सिद्धांत, गैर गणतांत्रिक, गैर संसदीय और जो एक प्रकार से विधायिका की पूरी प्रोसीडिंग्स को नीचे ले आया गया है, ये सामूहिक रूप से भर्त्सना योग्य है। और हम समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें उस दिन तो हमने बाहर आए ही हैं। अब एक दिन और बचा है संसद का, कल सुबह मीटिंग है, आगे के लिए क्या किया जाएगा उसका निर्णय कल सुबह होगा। धन्यवाद। क्या आप लोग गद्दी पार्टी का जो सस्पेंशन है, जब तक सरकार वो वापस नहीं लेती तब तक संसद नहीं चलने देगी? अभी मैंने कहा ना, अंत में यही तो कहा कि मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकता, ये सामूहिक एक रिएक्शन है, हर पार्टी इसमें शामिल है। तो मेरे लिए गलत होगा कि आपके उत्तर में मैं अपनी पार्टी का एक थोप दूं, एक मत। ये आप निश्चिंत रहें कि कल सुबह इस पर निर्णय होगा, लेकिन हम सब एक हैं इसमें। हमारे मूल्य, हमारी सोच और हमारी भर्त्सना सामूहिक है। कांग्रेस पार्टी वो तो आप कल बैठक करेंगे सारी पार्टियों, उसके बाद ही बोलेगी कांग्रेस। कांग्रेस उसका बहुत अहम हिस्सा है उस बैठक का। जिस तरह से तानाशाही है तो उस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का विपक्ष का बोलना एक स्वाभाविक बात है और इससे पहले भी बोलती रही है। अब बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि जैसा आपने कहा कि सब कुछ वापस खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में एक स्ट्रेटजी तो पार्टी को भी अपनी बनानी होगी ना। अगर पार्टी का कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ 23 दलों का आपको चाहिए, 23 में 15 आपके साथ अब तक आ चुके हैं। अरे आप इतना लंबा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं। हमारी स्ट्रेटजी तो कल होने वाली है फाइनलाइज औरों के साथ। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी पहले उनसे मिलने के आपको बता दूंगा तो मीटिंग इसी पार्टियों की यहीं हो जाएगी ना। फिर तो कल सुबह यही तो स्ट्रेटजी का खुलासा होगा। Have you first finished on the first issue on the everything? हिंदी इंग्लिश हो गया ना सब? हाँ, हाँ जी। Can I say it in Hindi and English both? बार बार नहीं फिर पूछने की आवश्यकता होगी। देखिए, इसके 2 या 3 मैं संक्षेप में उत्तर देना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपकी कथनी, आपकी ज़बानी सुनाना चाहता हूँ। आपसे मेरा मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सरकार 5 सितंबर 2013 में, और कोट कर रहा हूँ, और अगर मेरे बोलने के बाद ये ऊपर हाथ उठा के चला देंगे आपके सामने, माननीय जेटली साहब ने, जो अब नहीं रहे, कहा था कोट अनकोट, द डिज़ायर ऑफ ए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब influences pre-retirement judgments. It is a threat to the independence of judiciary, unquote. आप इसको एक बार सुन भी लें, क्योंकि आपके कैमरा के लिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। तो ये मैंने जैसा कहा कि आपकी कथनी, आपकी जुबानी। नंबर 2, शुरू से कर दीजिए, शुरू से उधर कर दीजिए मुंह। अभी इसको प्ले कर देते हैं, एंड में रेडी करके रोक देते हैं, फिर चलाते हैं वापस। दूसरा, देखिए, ये कोई इसका उत्तर नहीं कि पहले भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि अब काफ़ी समय से, और विशेष रूप से जिस निरंतरता से, जितनी जल्दी से आजकल हो रहा है,
एक सैद्धांतिक रूप से ये गलत है, ये न होना चाहिए, और हम इसका विरोध बिल्कुल करते हैं सिद्धांत पे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं उनको खुद को भी जानता हूँ, उनके सामने पेश हुआ हूँ, बड़े भद्र व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे जज रहे हैं उनके करियर में, कर्नाटक से आए हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है, एक सिद्धांत की बात हो रही है। जैसा कि कहा गया है, द डिजायर ऑफ अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इन्फ्लुएंसेस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, इट इज अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो सैद्धांतिक रूप से, निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं, और ये आपने कहा था, बार बार कहा था, सदन में कहा था, सदन के बाहर कहा था, तो उसका पालन करने के लिए अब आपका ये उत्तर नहीं हो सकता कि पहले भी हुआ था। अभी हमने हाल में और इसके उदाहरण देखे, और ये अब जैसे कोई परंपरा बनाई जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। Let me answer it in two ways. First and foremost, I want to replay what you said. By you, I mean the BJP, the ruling dispensation. One of your tall leaders, sadly no more with us, on 5th of September 2013, in the House and several times outside the House, said this, and I quote Mr. Jaitley: "The desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It is a threat to the independence of judiciary," unquote. The desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. So, it's no answer every time we say this for you to say it has happened in the past. This has also been said in the past. Secondly, we are not talking about persons. We are not talking about individuals. Personally, I have very great respect for this person. I know him. It is not about him at all. As a matter of principle, we oppose it. As a matter of principle, we believe that this is a great diminution and a great threat to the independence of the judiciary, for the reasons which I have just quoted on the excerpt which I have played out for you. And therefore, we condemn it, we oppose it, and we do not agree with it. देखिए, मैं पहली बात, ये प्रश्न आप हमसे पूछा ही नहीं करिए। जिन्होंने बोला उनसे तो आप पूछते नहीं, हमसे पूछते हैं। हमारा क्या सरोकार ऐसे वक्तव्यों से, और इस प्रकार की चीज़ों में पढ़ना जानबूझकर डाइवर्ट करने की प्रक्रियाएं हैं। इसलिए मैं बिल्कुल इसका मैं उत्तर दे के भी इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहता। इसके अंदर इसका कोई सरोकार नहीं है हमारे से, और न हमें आवश्यकता है इसको छूने की भी। बैठ के किसने की है? एम्बेसी में की गई है, ये विदेशी हैं, तमाम तरह से पीओए हैं, वो कह रहे हैं कि दावतों को जरिए तमाम तरह से दुष्प्रचार करना था, पीआर एजेंसी हायर करना था, आईटी प्रोफेशनल हायर करना था। जैसे देखिए, ये या तो आप पूछिए जिसने कहा है उनसे, और या पूछिए जिसके विषय में है ये जो एक बहुत बड़ी व्यापक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि पूरा विश्व लगा है एक ही काम में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप को विश्व का केंद्र बिंदु मानने वाली प्रक्रिया है। और ये तो सिर्फ आपको उनसे पूछ सकते हैं जो या कह रहे हैं ये, या जो उस कहने का केंद्र बिंदु है। मैं समझता हूँ कि ऐसे बिना किसी तथ्यों के, एविडेंस के वक्तव्य थोड़े मजाकिया हो जाते हैं। I think these are things you need to ask either the speaker of these things, the writer of these things, or the center point subject of these remarks. There's no point asking us. This great, grand world conspiracy about one particular individual may suggest illusions of grandeur to the effect that that person is the center point of the world. I don't know how much one can even mention a conspiracy like this without facts, evidence, but certainly it creates a great, great illusion of grandeur.